absolutely free YouTube channel of Vedantu NEET's latest presentation is a crash course on biology where we have classes every single day. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये एक एब्सोल्युटली फ्री कोर्स है जो हम नीट के लिए ला रहे हैं, वेदांतु की तरफ से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। हमारी रोज क्लासेस होंगी, आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, क्लास के बाद आपसे पीडीएफ शेयर किया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने को दिए जाएंगे, माइक्रो मेगा टेस्ट्स होंगे। और हम चाहते हैं कि आप सब, यस, हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात ये होगी कि अगर आप सबकी रैंक निकल कर आ सके। यस, so with that, my dear children, without wasting any more time, because every single day we've got to work hard, every single day we've got to solve the maximum possible MCQs. So with that, let's start the sprint of biology for you, my dear students, on absolutely popular demand. Let's start molecular basis of inheritance. Why do I pick up this topic is because this is one of the most important topics for the next 6 days. आपने ठीक सुना, for the next 6 long days I'm going to be doing the complete genetics and evolution with you, and this is one of the most important topics of genetics. So I'm going to be doing close to 100 odd questions on molecular basis of genetics right here, with explanation of every single question, ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ है आपको ये तो पता हो कि भाई मेरे से क्वेश्चन गलत क्यों हुआ और कैसे हुआ। Yes, so questions, their answers and explanations for every single question will be done right here, right now, for you by Vedantu, my dear children. So again, this is Dr. Vani, as you must already be knowing me. On behalf of Vedantu, I welcome you all to this super cool crash course on biology. Like, share, subscribe, please. Without wasting any more time, come, let's get started on molecular basis of genetics part 1. That means there's a part 2 which is also coming up. Yes, theory to be discussed मैंने इसीलिए दिया है because you all know I've already done the theory in detail. Yes, बहुत हमारा एक YouTube चैनल है which is the NEET Biology, जिसमें मैंने भर के वीडियोस डाले हैं. प्लीज गो बैक होम, स्पेशली जो ट्रांसलेशन tRNA का वीडियो है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे. अगर आप पहले वो वीडियो देखकर आए हैं और फिर मेरी क्लास लगा रहे हैं तो आपके देखिए कितनी स्पीड से धड़ाधड़ क्वेश्चंस निकलेंगे. इज दैट क्लियर? Yes, तो चलिए without wasting any time, let's get started. Okay, question number 1 on your screen. Which one of the following pairs of codons is correctly matched with their function or the signal for the particular amino acid? इनमें से कौन सा सही से मैच है? चलिए बताइए on my screen. Yes, correct. I can see the answers. Absolutely right. Correct answer is the stop codons. चलिए मैं मार्क कर देती हूं आप लोगों के लिए. This is the correct explanation. Yes, this is the correct answer. और इन सबके मैं आपको स्टार्ट बताती हूँ. ये बिल्कुल ठीक है स्टार्ट कोडॉन, पर ये आंसर नहीं है. इज दैट क्लियर? आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक कोड होता है, उस कोड को हम GUG कहते हैं. तो GUG जो कोड है वो बेसिकली वैलीन के लिए है. किसके लिए है? वैलीन के लिए. पर अगर GUG शुरू की पोजीशन में लग जाए, स्टार्ट में लग जाए, तो ये एक टाइप का मीथियोनिन बनाता है जिसको हम फॉर्माइल मीथियोनिन या एफमेट कहते हैं. क्या कहते हैं? एफमेट. एफमेट किसके लिए स्टैंड होता है? एफमेट स्टैंड होता है फॉर्माइल मीथियोनिन के लिए. किसके लिए? फॉर्माइल मीथियोनिन. इज दैट क्लियर? सो चलिए आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन इन डिटेल करवाती हूं. ध्यान से सुनिए. AUG codes for methionine and ACG codes for arginine. चलिए इसको दिखाती हूं मैं आपको. Yes, AUG methionine का कोड है, ACG arginine का कोड है. They are initiation of start codons which start the synthesis of polypeptide. AUG है start code, yes, along with GUG. UA, 3 हमारे पास नॉनसेंस कोडॉन्स है जो पिछले में हमारा राइट आंसर था. नॉनसेंस कोडॉन्स वो होते हैं जिन पे tRNA आकर करेक्ट नहीं लगता है. जब tRNA आकर इन पर नहीं लगेगा, अगर ये लास्ट वाला नॉनसेंस कोडॉन हो गया तो इस पे tRNA नहीं लगेगा, और अगर इस पे tRNA नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली प्रोटीन ट्रांसलेशन रुक जाएगा. सो देयर आर 3 नॉनसेंस कोडॉन्स, एम्बल, ओपल, ओशर. यस, UAG स्टैंड्स फॉर एम्बर, UGA स्टैंड्स फॉर ओपल एंड UAA स्टैंड्स फॉर ओशर. दे डू नॉट स्पेसिफाई एनी अमाइनो एसिड, सो दे आर नोन एज टर्मिनेशन नॉनसेंस कोडॉन्स. UAA इज ल्यूसिन का कोड, UCA सीरीन, GUG इज वैलीन, पर अगर वो शुरू में लग जाए तो वो फॉर्माइल मीथियोनिन करवाता है.
एंड GCU इज एलेनिन। आपको सारे अमाइनो एसिड्स के कोड आपने तो कुछ सारे याद रखने नहीं, सारे याद नहीं रखने, बट एटलीस्ट नॉनसेंस कोडॉन्स स्टार्ट स्टॉप तो आपको याद रखने ही हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन प्लीज। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड with the category mentioned against them? किसको हमने wrongly मैच किया है? मैं यहां पे आपको एक हिंट देना चाहती हूं, वो हिंट आपके सामने ये रही। What is the hint my dear children? ध्यान से सुनिए। हिंट ये है कि एक चीज होती है उसको हम एग मार्क कहते हैं। अगर आपने कभी किचन में अपनी मदर की हेल्प कराई होगी तो किचन में मसाले होते हैं, दालें होती है, चावल होता है। एग मार्क एक कंपनी है, अगर ये कंपनी खाने के ऊपर स्टैंप लगा दे दैट मीन्स इट्स प्योर, इट्स अ निशानी, इट्स लाइक अ स्टैम्प, इट्स लाइक अ सील ऑफ प्योरिटी। इज दैट क्लियर? सो एग मार्क इज अ seal of purity. It means the agricultural mark. It's a symbol of purity. That means the food grains that you're buying are pure. So this can be used as a very easy way to remember things. What I want you to remember is, please ध्यान से सुनिए, what I want you to remember is egg and pure. So purines are adenine and guanine. What are the purines? Adenine and guanine. चलिए let's look at the answer. So which one of the following pairs of nitrogenous bases of nucleic acids is wrongly matched? Yes, that's what they're saying. Which is wrongly matched? मैंने अभी आपको बताया क्या होगा purine. Is that clear? और बाकी बच्चों में क्या होंगे? Pyrimidine. Correct. Let's look at the explanation for this particular answer. Adenine and guanine, like I told you, are purine bases. Is it not? Yes, we just saw that adenine and guanine are purine bases, and the others, thymine, uracil, and cytosine, are pyrimidine bases. What other thing I want you to see is, can you all see two rings here? Can you also see two rings here? So adenine and guanine have two rings, whereas cytosine and uracil have one ring each. Adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine. Guanine forms 3 hydrogen bonds with guanine forms 3 hydrogen bonds. Absolutely right on my screen there with cytosine. Is that clear? Can you see DNA has got, you know, 2 backbones? DNA has got 2 backbones और बीच में rungs of ladder. The rungs of ladder are made by alternate, you know, bases, and the backbone is made by sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate. Is that clear? And then you twist it. So are you enjoying? Let's increase the speed. Correct. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, in the DNA molecule which of the following statements is right? Which of the following statements is right? बताइए। Yes, absolutely, absolutely. इनमें से एक स्टेटमेंट है, मैंने अभी आपको बताया। देखिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और वो एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब ऐसे है पर ऐसे है, राइट? एक अगर ऊपर 3 है तो साइड में 3 नहीं होगा। इज दैट क्लियर? मैं आपको दिखाती हूँ 3। यस, देयर आर 2 स्ट्रैंड्स व्हिच रन एंटी पैरेलल। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। दैट मींस इफ वन स्ट्रैंड इज लाइक दिस, लेट्स ड्रॉ इट, द अदर स्ट्रैंड विल बी लाइक दिस। दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल। इफ दिस 5 प्राइम हियर, you cannot have a 5 here, you have to have a 3 here. Absolutely. And if there's a 5 here, you'll have a 3 here. If there's a 3 here, you will have, yes, absolutely, that's anti-parallel nature. Yes, चलिए इसका explanation देख लेते हैं। DNA is a type of nucleic acid, deoxyribonucleic acid. RNA is ribonucleic acid. So DNA is a type of nucleic acid that forms genetic material in many organisms, including human beings. RNA is genetic material in retroviridae, HIV. Correct. It consists of a long polymer of nucleotides which transcribes the coded information in the form of a triplet code. So DNA एक long polymer है, sugar base और phosphate का। इसके अंदर information stored है। इसकी information RNA में copy होती है, उसको हम transcription कहते हैं। RNA से protein बनता है जिसको हम translation कहते हैं। Right? So if one side is 5 prime, the other has to be 3 prime. The 5 prime always ends with a phosphate. This can also come in the MCQ. The 5 prime always ends with a phosphate, and the 3 prime always ends with a hydroxyl group. If there's a 3 prime here, you cannot have a 3 prime here, it has to have 5 prime. This is called the anti-parallel nature. I would like you to go back, you know, see the recording again, stop it here and read the explanations, because every word in the explanation is really, really important. Moving ahead on to the next slide. Question number 4. Which is not true for genetic code? You know, the genetic code is triplet. It's read in a continuous fashion. It is degenerate. That means there is more than one genetic code for an amino acid. But they are saying on your screen what is not true for the genetic code.
A B C D, चलिए बताइए. Absolutely right, absolutely right. A codon in mRNA is read in non-contiguous is wrong. It's read in continuous manner. There is no hyphen, there is no full stop, there is no comma, there is no arrow, there is nothing. It's read one after the other. 3 पढ़ते, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, कंटिन्यूस फैशन में पढ़ते टिल दी एंड. एंड में क्या होता है? नॉनसेंस कोडॉन, जिसके ऊपर कोई कोई tRNA आकर नहीं लगता और प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाती है. Yes, the relationship between the sequence of amino acids in a polypeptide and nucleotide sequence of DNA or mRNA is the genetic code. That means that DNA contains the code which is copied onto the mRNA. Correct. And the mRNA contains the code and the non-code. उस पर भी मैं आऊंगी. mRNA में कोड भी होता है, mRNA में नॉन कोड भी होता है. नॉन कोड को हम क्या करते हैं? करेक्ट, नॉन कोड को हम कट करके निकाल देते हैं. व्हाट इज द इंटरप्टिंग और द नॉन कोडिंग यूनिट कॉल्ड? ऑन माई स्क्रीन फास्ट. यस, the interrupting or the non-coding unit is known as the correct intron. We have to remove it. The process of removal of the intron is known as, yes, absolutely, my dear children, very well, build the tempo. Correct, it's known as splicing. And then the exons or the coding parts are joined with the help of an enzyme known as ligase. Correct. So ये जो कोड है, करेक्ट, ये जो कोड है जो गैमो ने डिसाइड किया था, ये जो कोड है, ये कोड कंटिन्यूअस है. एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, एंड कोड इज ट्रिपलेट. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ट्रिपलेट? दैट मींस वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय 3 nucleotide bases. Absolutely. चलिए मूविंग अहेड. रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, आई जस्ट टोल्ड यू. यस, इंट्रॉन्स. देखो बेटा, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो कई बार डीएनए में कुछ अनवांटेड जीन्स होती है. जनरली डीएनए की अनवांटेड जीन्स को हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं, सैटेलाइट. ये टीलोमेयर, ये एंड ऑफ क्रोमोसोम में भी हो सकता है. इज दैट क्लियर? तो जितना भी ये अनवांटेड पार्ट है डीएनए का, कई बार ये भी आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, डीएनए का अनवांटेड पार्ट आरएनए में कन्वर्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दीजिए. पर अगर ये डीएनए का अनवांटेड पार्ट जो आरएनए में चला गया है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो डीएनए का पार्ट जो आरएनए में चला गया तब तक ठीक है, पर अगर वो आरएनए का पार्ट प्रोटीन में बन गया तो मेरे शरीर में ऐसे कोई अनवांटेड, यस, ऐसा कोई अनवांटेड आरएनए का प्रोटीन बन सकता है. आपको पता होगा बहुत लोग हैं आजकल जिनको कैंसर हो जाता है अनफॉर्चुनेटली. यस, हम सबके शरीर में ऑन्कोजीन्स होती हैं. देखिए कितनी हैरानी की बात है, हम सबके शरीर में ऑन्कोजीन्स होती हैं. ऑन्कोजीन्स आर स्विच्ड ऑफ. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन्कोजीन्स हमेशा स्विच्ड ऑफ रहती है. स्विच्ड ऑफ का मतलब क्या है बच्चों? दैट मीन्स कभी भी ऑन्कोजीन्स का डीएनए आरएनए नहीं बनाता और आरएनए से आगे चल के प्रोटीन नहीं बनता. पर बाई चांस कभी कोई अनवांटेड मटेरियल, मैं आपको लिख के बताती हूं. यस, हो सकता है डीएनए का, ये डीएनए है बच्चों, ये डीएनए है. मान लीजिए इसका ये अनवांटेड मटेरियल है, ये इसका अनवांटेड मटेरियल, इसको यूडब्ल्यू लिख देते हैं. यस, मान लीजिए इसका अनवांटेड मटेरियल का आरएनए बन गया. यस, तो ये रहा आरएनए का अनवांटेड मटेरियल बनाते हैं. ये देखिए, ये आरएनए का. तो मुझे क्या इसको निकालना है? डू आई हैव टू रिमूव इट? यस, बिकॉज आई डोंट वांट कि इस अनवांटेड मटेरियल का क्या बन जाए, प्रोटीन में नहीं चाहती हूं. दिस इज द केस ऑफ ऑन्कोजीन्स. These are the unwanted genes. Yes, exactly. So this unwanted material or this protein needs to be removed. We don't want to get it made into protein. That process is called as splicing. Unwanted material हमें interrupt करता है. कितने बच्चे मुझे पूछते हैं मैम हमें इंट्रॉन एक्सॉन याद ही नहीं रहता. अनवांटेड जो मटेरियल है, जो अनवांटेड मटेरियल है, वो मुझे क्या कर रहा है? इंटरप्ट. इसीलिए मैं उसको क्या कहती हूं? इंटरॉन. डन? यस. टेलिंग क्या होता है मैं आपको फटाफट बताती हूं. टेलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, जब मेरा आरएनए बन गया ना, मेरा आरएनए बन गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जब मेरा आरएनए बन गया तो मुझे पता होना चाहिए भाई ये तो मेरा परफेक्ट आरएनए, ये बनकर तैयार हो गया. आप शादी में जा रहे हो, 1000 लोग हैं शादी में, आपको कैसे पता चलता है ये दूल्हा है? बेचारे को घोड़ी पे बैठा देते हैं. यस, मुंह पे सेहरा लगा देते हैं. करेक्ट. तो उसको मतलब अलग कार्टून बना देते हैं, पता चल जाता है भाई ये तो दूल्हा है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? सिमिलरली हमें पता तो चलना चाहिए कि मेरा मैच्योर आरएनए तैयार हो गया. तो हम क्या करते हैं? उसको कैप लगा देते हैं और उसको
टेल लगा देते हैं, टेल में हम ए लगा देते हैं, ए रेज़ टू पावर इंफिनिटी, एडेनिन लगा देते हैं, उसको कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन, डायरेक्ट एमसीक्यू। और कैप मतलब उसके हेड पे हम क्या लगा देंगे, 7 मिथाइल गुआनोसिन, तो हेड पे लगा देंगे 7 मिथाइल गुआनोसिन, यस और नो ऑन माय स्क्रीन नाउ, और टेल पे लगा देंगे पॉली एडिनाइलेशन, राइट। सो दैट्स कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको करवाने वाली हूं। एंड स्प्लाइसिंग इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इंटरॉन इंटरप्टिंग यूनिट है, उनको हटाया जाएगा, एक्सॉन कोडिंग यूनिट है, उनको जोड़ा जाएगा। कौन जोड़ेगा, करेक्ट, लाइगेज। चलिए आगे बढ़े, स्प्लाइसिंग में आपको बता चुकी हूं, यस। तो देखिए स्प्लाइसिंग में मैं क्या कर रही हूं, स्प्लाइसिंग में मैं इंट्रॉन को निकाल रही हूं। व्हाट इज इंट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रॉन इज द इंटरप्टिंग यूनिट, इसको मैंने निकाल दिया और इन दोनों को मैंने लाइगेज से जोड़ दिया। अब ये मेरा फाइनल आरएनए बन गया। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रही हूं, ध्यान से सुनिए। इस फाइनल आरएनए में सिर्फ एक्सॉन है, हाँ या ना, हाँ जी। इस फाइनल आरएनए में सिर्फ तो इसको कहते हैं होमोजीनस। क्या कहते हैं, होमोजीनस। इसमें क्या है, सिर्फ एक्सॉन है और कुछ नहीं है। ध्यान से सुनिए, बहुत कम दिन रह गए, हर शब्द हर वर्ड जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ये ध्यान से सुनिए। तो इसमें होमोजीनस है, इसको मैं क्या कर दूंगी, कैप, और क्या कर दूंगी इसको मैं, टेल। और इसमें तो एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है। इसको क्या कहेंगे, हेटेरोजीनस। ठीक है, डन। चलिए बढ़ता, आगे बढ़े, चलिए। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, आपको पता है डीएनए जब हम रेप्लिकेट करते हैं, एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है, एक नया, एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है, एक नया, दैट्स कॉल्ड अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इनमें से किसमें किया गया था, महा इजी क्वेश्चन है, चलिए बताइए। यस, ऑब्वियसली सारे एक्सपेरिमेंट आंख बंद करके याद रखिएगा, मैक्सिमम सारे एक्सपेरिमेंट इस बेचारे पे किए गए थे, इसने हमारा बहुत भला किया है। यस, हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है पढ़ाई करने की। बेचारा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक, और एक महानुभाव कौन है ये, इश्चेरिशिया कोलाई, और दूसरे महानुभाव कौन है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सैल्मोनेला टाइफोमोरियम हमारे बॉडी में टाइफॉइड करते हैं, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ए एंड बी। इसके वैक्सीन का नाम होता है टैब, लिख लीजिए, हर वर्ड जो मैं कह रही हूं इंपॉर्टेंट है। चलिए, टैब वैक्सीन। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यस, निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस पे किसने काम किया था, चलिए ऑन माय स्क्रीन, यस यस, किसने काम किया था बच्चों, बताइए। करेक्ट, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्यू, मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, मेसेल्सन एंड स्टाल इनका शॉर्ट फॉर्म होता है, फिर भी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बाय चांस कभी फुल फॉर्म में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की। इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन कहा था, दैट मींस एक ओल्ड स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड। देखिए, कंजर्वेटिव होता है कि पुराना अलग हो जाएगा, पर वो नहीं होता। डिस्पर्सिव होता है बीच बीच में, ये दोनों नहीं होते हैं, दीज आर नॉट हैपनिंग, करेक्ट, ये भी नहीं होता। और सेमी कंजर्वेटिव होता है, और मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने इसको बताया था। बिल्कुल बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। हुज एक्सपेरिमेंट्स क्रैक द डीएनए एंड डिस्कवर्ड अनइक्विवोकली, का मतलब है बिना किसी शक के, यस, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह गई, द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। किसने कहा था, AUG मतलब मीथियोनिन, UUG मतलब फिनाइलएलेनिन, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, किसने कहा था, ऑन माय स्क्रीन, करेक्ट, गुड, वेल डन, गुड, नीरेनबर्ग एंड मेथाई, यस। सो जेनेटिक कोड वाज डिसाइफर्ड इन 1960s। ये इंडियन पर्सनैलिटी है, यस, हरगोबिंद खुराना, ही इज अ नोबेल लॉरिएट, करनाल में पले बड़े हैं, वहीं कहीं के आसपास पढ़ाई भी की हुई है। यस, जेनेटिक कोड वाज डिसाइफर्ड इन 1960s बाय दीज 3 पीपल। यस, क्रिक, ओशोवा, ये लोग भी थे इन्वॉल्व। जेनेटिक कोड इज द मीन्स बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड। डीएनए में कोड होता है जो आरएनए में ट्रांसफर हो जाता है, सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि डीएनए के पास है ATGC और आरएनए के पास क्या है, टी की जगह लगा दो U, AUGC। हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स है, और इन 20 अमाइनो एसिड्स के लिए हमारे पास 64 कोड्स हैं, राइट, 64 कोडॉन है। तो एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन है। एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होना क्या कहलाता है, बताइए ऑन माय स्क्रीन। यस, इट्स नोन एज degeneracy of the genetic code। yes, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में।
सॉल्व हो रहे हैं। देखो बच्चों, आपके साथ पूरा स्केड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, पढ़कर आइए। पढ़कर आने से भी क्या इंपॉर्टेंट है, हमने पिछले महीने जब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे तो एक बायोलॉजी का स्प्रिंट टाइप लॉन्च किया था, जिसमें हर दूसरे दिन मैंने खूब वीडियोस बनाए हैं, प्लांट एनाटॉमी के वीडियो बनाए, प्लांट मॉर्फोलॉजी के वीडियो बनाए हैं, 4-4 वीडियो एनिमल फिजियोलॉजी के बनाए हैं, जेनेटिक्स के वीडियोस बनाए हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे 2-2 वेबिनार्स हैं। ढूंढिए उनको, नहीं मिलता है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताती हूं। बायोटेक्नोलॉजी के 2 वेबिनार्स हैं, ध्यान से सुनिए, हर एक चीज बायोटेक्नोलॉजी की डिस्कस की गई है। इज दैट क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन वीडियोस को देखिए और ये करिए। बहुत कम टाइम रह गया है हमारे पास। यस, एंड वी आर ऑल्सो कमिंग आउट विद एनसीईआरटी सीरीज, बिकॉज एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ध्यान से सुनिए, बैठिए, नोट्स बनाइए, जो कुछ मैं बोल रही हूं उस पर टेंशन दीजिए। चलिए आगे बढ़े। पॉइंट म्यूटेशन, अगर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड पे म्यूटेशन हो गई, अगर सिर्फ एक बेस पे म्यूटेशन हो गई, जिसका क्लासिकल एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया, जो कि पीलियोट्रोपी का भी एग्जांपल है। अगर सिर्फ एक बेस पे म्यूटेशन हो जाए, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स डुप्लीकेशन, मतलब क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया, मतलब क्रोमोसोम का एक पार्ट टूट गया, मतलब क्रोमोसोम में कुछ ऐड हो गया। ये पॉइंट म्यूटेशन नहीं है, ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के म्यूटेशन है बच्चों। तो पॉइंट म्यूटेशन पे देयर इज चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर, जो किसमें होता है, सिकल सेल अनीमिया। देखिए एक पॉइंट पे, यस, एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है। सच म्यूटेशंस which occur at a single point in the nucleotide sequence, which occur at a single ATGC base pair, is known as a point mutation. Classical example is सिकल सेल अनीमिया, जिसमें पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लग जाता है, करेक्ट valine. Select the 2 correct statements out of the 4 statements given below about lac operon. Lac operon was discovered by Jacob and Monod. Lac operon क्या है, देखिए 1 2 3 4 है, बताइए। देखिए the correct statements are, बताइए। lac operon is a operon. What is operon? Operon is a group of genes which are under a single operator, right? अगर 2 या 3 structural genes हैं, अगर वो single operator के अंडर है, उनको हम क्या कहते हैं, operon। देखिए 1 2 3 4 done, marked, moving ahead. Correct. What are the correct answers? 2 and 4. Obviously, this was found out in E. coli. It was found out by scientists known as Jacob and Monod, Francois Jacob and Jacques Monod. Right? So 4 statement तो 100% correct है। In the absence of lactose, repressor binds with the operator. Lactose के बिना मुझे ZYA से काम नहीं करवाना है, तो repressor किस पे bind हो जाएगा, operator। Operator inactive हो जाएगा, ZYA काम नहीं करेंगे। Should I explain the lac operon? Yes, सारे बच्चे कहेंगे yes, yes, yes. Should I explain the lac operon to you? I'm sure majority of you like, हे भगवान, lac operon नहीं आता। Yes, okay? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये एक डायग्राम है। आपको यहाँ कुछ नहीं देखना, आपने बस ये देखना है कि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो इस रेड कलर के पार्ट के ऊपर फिट हो जाता है। इतना समझ में आ रहा है? बाकी कुछ नहीं, 1 2 3 4 क्या है, कुछ नहीं, मैं सब समझाऊंगी। आपको इतना पता चल रहा है कि ग्रीन कलर का पार्ट रेड कलर के पार्ट पे फिट हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर। देखो बेटा, ध्यान से सुनो, लैक ओपेरॉन पे मैं स्लाइड्स बनाऊंगी, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखना कि ZYA जो है ना, ZY और A, इनको हम स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। क्या काम होता है स्ट्रक्चरल जीन का, स्ट्रक्चरल जीन का काम होता है लैक्टोज को यूटिलाइज करना, दैट्स ऑल। इंजाइम्स बनाना ZYA का काम है, इंजाइम्स बनाना, इंजाइम्स बनाकर, यस, ZY का काम क्या, लिख के बताती हूं मैं आपको। चलिए, ZYA का काम है बच्चों इंजाइम्स बनाना। क्या करना, इंजाइम्स बनाना। ये इंजाइम्स क्या करेंगी बच्चों, ये इंजाइम्स क्या करेंगी, यूटिलाइज। किसको यूटिलाइज करेंगी ये बच्चों, लैक्टोज को। तो बेटा अब आप ये सोचो, ना रहा बांस ना बजी बांसुरी। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास फ्लूट ही नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ फ्लूट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आर यू गोइंग टू बी एबल टू प्ले द फ्लूट, ऑब्वियसली नो। तो मान लीजिए अगर आपके पास लैक्टोज नहीं है, ये सब क्या लिखा है सारा छोड़ दीजिए, मान लीजिए आपके पास लैक्टोज नहीं है। अगर आपके पास लैक्टोज नहीं है तो क्या ये तीनों जो भी इंजाइम बनाएंगी, क्या वो इंजाइम लैक्टोज पे काम करके लैक्टोज से मुझे ग्लूकोज दे पाएंगी, बस मुझे इतना बताइए। लैक्टोज नहीं है आपके पास, बिल्कुल। अगर आपके पास लैक्टोज नहीं है, क्या मुझे इंजाइम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, नो। नो लैक्टोज मींस नो इंजाइम, यस, बिकॉज ये इंजाइम लैक्टोज को ही डाइजेस्ट करती है। तो अगर लैक्टोज ही नहीं है तो मैं इंजाइम बनाकर क्या करूंगी, बिल्कुल। एट दैट टाइम द ऑपरेटर हैज टू बी ऑफ।
तो दिस रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड्स टू ऑपरेटर. दैट मीन्स इफ आई हैव टू राइट इट डाउन, चलिए मैं आपको क्लियरली लिख के बताती हूं. यस, अब देखिए प्यारा सा कौन सा कलर पेन यूज करें बताइए. आई थिंक ग्रीन है ना. चलिए, सो नो लैक्टोज, no enzymes have to come out, operator has to be off, so the repressor binds to the operator and makes it off. Simple. पर अगर लैक्टोज है इसलिए इसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिए. इसको इंड्यूसिबल ऑपरॉन कहते हैं. क्या मतलब हुआ इंड्यूसिबल ऑपरॉन का? इंड्यूसिबल ऑपरॉन का मतलब हुआ कि लैक्टोज काम करवाएगा, डंडा मारेगा और काम करवाएगा. इज दैट क्लियर? तो अगर लैक्टोज है तो लैक्टोज जाके रिप्रेसर पे लग जाता है. रिप्रेसर जो है हमारा इनएक्टिव हो जाता है. पहला पॉइंट है लैक्टोज है, दूसरा पॉइंट है लैक्टोज जाके रिप्रेसर पे लग गया. रिप्रेसर बेचारा मेरा इनएक्टिव हो गया. रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर पे नहीं लग सकता. ZY हो जाएगा ऑन और मैं डाइजेस्ट कर लूंगी लैक्टोज को और लैक्टोज से बना लूंगी मैं ग्लूकोज. सो इट्स अ इंड्यूसिबल ओपेरॉन. दैट मीन्स ओपेरॉन तभी काम करेगा जब मेरे पास लैक्टोज होगा, और अगर लैक्टोज नहीं है तो ऑपरेटर काम नहीं करेगा. अगर आपको अभी भी डाउट्स होंगे इसमें तो डोंट वरी, कमेंट्स में लिख डालिएगा. मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगी जहां पे लैक ओपेरॉन बहुत डिटेल में आधे घंटे में समझाया गया है. डोंट वरी, दिस चैनल इज फॉर यू. आपको जहां प्रॉब्लम आए कमेंट्स में लिखिए, वी विल डू द बेस्ट फॉर यू. यस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? अगर आपने मेरी स्लाइड्स देखी होंगी यूट्यूब पे पहले, तो हमेशा मैंने फोकस किया सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे. हमेशा जितने भी क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं. वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. इज दैट क्लियर? यस. तो अभी ध्यान से मेरी बात सुनिए. Which one of the following does not? What is the central dogma of molecular biology? The central dogma of molecular biology एक आदमी ने दिया था. उस आदमी का नाम था FHC क्रिक. क्या नाम था उस आदमी का? यस, FHC क्रिक. इन भाई साहब ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो DNA है वो अपनी कॉपी बना सकता है, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं. DNA जो है वो RNA बना सकता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. और RNA से बन सकता है प्रोटीन. इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं RNA से प्रोटीन बनाना? ट्रांसलेशन. और अगर बाई चांस HIV जैसा वायरस है तो वो RNA से DNA बनाएगा, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ना कि ट्रांसक्रिप्शन. तो बेसिकली वो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को फॉलो नहीं करता है, वो तो उल्टा जा रहा है. सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब DNA से RNA और RNA से प्रोटीन. अगर HIV है वो तो उल्टी गंगा बहा रहा है, वो RNA से DNA बना रहा है. इज दैट क्लियर? सो इनमें से कौन है जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉलो नहीं करता? इतना सिंपल है, बताइए. Yes, absolutely, HIV. Because DNA से DNA बनाना replication with the help of DNA polymerase, DNA से RNA बनाना transcription with the help of RNA polymerase, yes, and RNA से प्रोटीन बनाना is translation. But अगर मैं ऐसा कुछ कर रही हूं तो मैं उल्टी गंगा बहा रही हूं. यस, और इसको क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट नहीं है. किसने दिया था सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? FHC क्रिक. एक्स्ट्रा 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 इंफॉर्मेशन. ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसने ढूंढ निकाला है? मेरे जो ओल्ड बच्चे उनको ये पता होगा. हर क्लास में मैं डिस्कस करती हूँ, प्रीवियस ईयर MCQ है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर किया था दो लोगों ने, जिनका नाम है बच्चों टेमिन एंड बाल्टीमोर. चलिए, इस प्रोसेस को इसीलिए टेमिनिज्म भी कहते हैं. क्या कहते हैं? टेमिनिज्म. यस एवरीबॉडी, करेक्ट, अंडरस्टूड. चलिए, एंजाइम्स याद रखिएगा. करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू? जो भी चीजें इनमें मेंशन की गई है, इनमें से कौन सी चीजें उसके लिए करेक्ट है? चलिए पढ़िए. सेंट्रोसोम मेंशन्ड है आपके लिए, इंसुलिन प्रोडक्शन है, न्यूक्लियोसोम है और DNA है. बताइए, है ना? इजी इजी लग रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? हो पा रहा है सॉल्व? फायदा हो रहा है आप लोगों का? चलिए बताइए. गुड. The gene for producing insulin is present in every body cell. देखो बेटा, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था, स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ. देखो बेटा,
हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी होती है हर सेल में, पूरी बॉडी के हर सेल में कुछ भी बनाने की इंफॉर्मेशन है। इज दैट क्लियर? बट डिपेंड कर, देखो जो हड्डी है, हड्डी के पास भी इंसुलिन, हड्डी के सेल है, हड्डी के सेल के पास भी इंसुलिन बनाने की इंफॉर्मेशन है, पर हड्डी का सेल इंसुलिन बना के उसको क्या फायदा होगा, राइट? वो उसको क्या बनाना है, उसको बनाना है ओसेन, जिससे वो हड्डी डिपॉजिट करेगा। स्किन को क्या बनाना है, कोलेजन, राइट? तो हर एक सेल में ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो भी चीज बनानी है सेल को, हर एक सेल के पास ऑल इंफॉर्मेशन है। क्या है? ऑल इंफॉर्मेशन। पर सेल क्या करता है बच्चों? सेल बड़ी स्मार्ट चीज होती है। सेल करता है स्पेशलाइजेशन। क्या करता है? यस, स्पेशलाइजेशन। आप एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद आप सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे। एग्जैक्टली, मैंने स्पेशलाइजेशन करी है नीट में, आई होप सो। हाँ, आई होप सो। चलिए, तो सेल क्या करता है? स्पेशलाइजेशन। दैट मीन्स जो सेल है वो जो काम उसको करना है सिर्फ उसी को प्रोड्यूस करेगा। इंफॉर्मेशन है पर वो प्रोड्यूस वही करेगा, बाकी जीन्स को क्या कर देगा? ऑफ। और ऑफ किसको कर देगा? रेस्ट ऑफ जीन्स। किसको ऑफ कर देगा? रेस्ट ऑफ जीन्स। और ऑन किसको करेगा? स्पेसिफिक जीन्स, जो काम उसको करना है। यस, तो ये रहा सेल, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है। सच ए ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ सेल। हर एक इंफॉर्मेशन रहती है, सब कुछ बना सकता है, पर काम सिर्फ वही करेगा जो उसको करना है, स्पेसिफिक काम। आप अभी मूवी भी देख सकते हैं, आप खाने पीने भी बाहर जा सकते हैं, यस, आप डेट मारने भी जा सकते हैं, पर आप क्या काम करेंगे? नीट की पढ़ाई। यस, फायदा उसी से होगा। चलिए, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग। मैंने आपको बता दिया है स्प्लाइसिंग मतलब क्या होता है, इंट्रॉन्स को हटाना। कैपिंग का मतलब क्या होता है? जब मेरा आरएनए तैयार हो गया तो मुझे पता तो चलना चाहिए भाई आरएनए रेडी है। जब खाना बन जाता है तो मम्मी क्या करती है? किचन से आवाज मारती है, आ जाओ बच्चे, फूड इज रेडी। यस, तो आप खाना खाने जाते हैं। सिमिलरली जब मेरा आरएनए बन गया, मुझे पता चलना चाहिए कि भाई आरएनए बन चुका है। तो आरएनए का जो 5' एंड होगा, आरएनए 5' to 3' होगा, आरएनए का जो 5' वाला हेड होगा उसमें मैं 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप चढ़ा दूंगी, मत भूलिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। Is that clear? So eukaryotic cell transcription, RNA splicing and RNA capping take place inside the nucleus. करेक्ट। आरएनए बनता कहां है? न्यूक्लियस। उसकी कैपिंग, टेलिंग वगैरह ये देखिए ब्यूटीफुल डायग्राम। आरएनए कहां बन रहा है? न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? और बाहर क्या बन रहा है? साइटोप्लाज्म में क्या बन रहा है? ट्रांसलेशन। कई बार इतने इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आता था। एमआरएनए बाहर आया और बाहर प्रोटीन ट्रांसलेशन होगा, पर एमआरएनए बन कहां रहा है? न्यूक्लियस में। तो कैपिंग वगैरह, टेलिंग वगैरह कहां होगी? कैपिंग, टेलिंग को हम क्या कहते हैं? ये वर्ड आपको आना चाहिए अगर ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया। देखो ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? पोस्ट ट्रांसलेशन। काफी लोगों को ये पता होंगे, मैंने डिटेल में इसके ऊपर स्लाइड्स बनाई है, प्लीज देखिए। डिटेल में इसके ऊपर मैंने वेबिनार्स लिए हैं, स्लाइड्स बनाई हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आरएनए का जो मॉडिफिकेशन होता है, आरएनए का बनने के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है, उस मॉडिफिकेशन का नाम क्या होता है? आरएनए के मॉडिफिकेशन का नाम, आरएनए के मॉडिफिकेशन का नाम होता है कैप करना और टेल करना। कैप होता है 5' एंड पे, टेल होता है 3' एंड पे। तो इनको हम क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन होने के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन के बाद का मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्रूट फ्लाई नोन एज ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रा, जिसपे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, किसने किए थे? यस, सही बोल रहे मेरे प्यारे बच्चे, ऑसम ऑसम ऑसम। किसने किए थे एक्सपेरिमेंट्स? टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। सो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रा वाज फाउंड टू बी वेरी सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है? सूटोन और बोवरी ने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी। सूटोन एंड बोवरी, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। आप अगर ध्यान से गौर से सुनिए तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन पे 2 या 3 एमसीक्यू करवा रही हूं। इज दैट क्लियर? ऐसे हम पूरे चैप्टर्स करेंगे पूरे महीने, सो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ध्यान से सुनिए। सो सूटोन एंड बोवरी ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, वो हमने fruit fly Drosophila melanogaster पे क्यों की? Right? So fruit fly Drosophila melanogaster was found to be very suitable for experimental verification of chromosomal theory of inheritance by Morgan and his colleagues. Why? Why did they choose fruit fly? The options are right here in front of you. चलिए मैं साइड पे हो जाती हूँ so that you can see the options. A, B, C, D. Yes? चलिए बताइए. Good. Good. Yes? Smaller females. See, आपको chromosomal theory of sex determination, उसमें हमें पता लगाना था ये फीमेल है, ये मेल है, एंड वी हैड स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स जो दोनों में सेपरेट थे, आई कलर की जीन्स जो दोनों में सेपरेट थी। सो वी हैड टू इजीली सी। देखिए जितना आसान होगा
एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को इन्फर करना उतना इजी और उतनी स्पीड से मेरा एक्सपेरिमेंट होगा. सो दे वर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. पहली बात तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर लेते थे, राइट. दूसरा, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर थे. मुझे माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर हर चीज की स्टडी करने की जरूरत नहीं थी. आई कुड जस्ट लुक एट देम एंड आई कुड से दैट दिस इज द मेल एंड दिस इज द female. Smaller female is easily recognized from larger male, so I could easily find out the sexual differences between the two. Absolutely right. Morgan worked with the tiny fruit flies known as Drosophila melanogaster. They were found to be very suitable for such studies. ये एग्जाम में आ सकता है. उसी में why have I put this also? Because he studied linkage in fruit fly, and you all know that Mendel के बाद T.H. Morgan आया था. Mendel ने कॉन्सेप्ट ढूंढ निकाला था जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दैट मीन्स जीन्स आर नॉट लिंक. कैपिटल Y स्मॉल r के साथ भी लग सकता था. इज दैट क्लियर? Genes are not linked, but linkage as we know today is inversely proportional to independent assortment. तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ. Linkage is inversely proportional to yes independent assortment. Is that clear? T.H. Morgan मत भूलिएगा. Tiny fruit flies, Drosophila melanogaster, they could be grown on simple synthetic medium. केला रख दीजिए, केले के ऊपर भी आ जाएगा. सिंथेटिक मीडियम के ऊपर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. They complete their life cycle in just about 2 weeks. They could produce large number of progeny. कई बार क्या होता है, इनमें से आ जाएगा which one of the following is false. तो सारा कुछ Drosophila melanogaster के बारे में ठीक ठीक लिखा और पूछेंगे which of the following is false. Such simple questions also could come like googly questions. आप कुछ हाई फाई पढ़कर बैठे और सडनली आप देख रहे अरे धड़ाम से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है. Yes, this is the most important point. Yes, he wanted to see कि भाई कुछ करेक्टर्स हैं जो लिंक्ड है. किसके साथ लिंक्ड है बताइए. यस, कुछ करेक्टर्स हैं जो सेक्स के साथ लिंक्ड है. सो ही सेड देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस. द मेल एंड द फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल. आल्सो इट हैज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी variations. Absolutely, very good my dear children. So that linkage is inversely proportional to crossing over, right? Now let's come to the lac operon concept. What is the lac operon concept? Lactose and operon. Operon, as I've already told you, is a group of genes which are under a single operator. Operator कौन है? मम्मी. और ZY क्या है? घर के बच्चे. मम्मी कंट्रोल्स पूरी कॉलोनी के बच्चे. घर के बच्चे तो दूर की बात है. यस. सो लैक ऑपरॉन में क्या है? लैक ऑपरॉन में देयर इज अ सिंगल जीन व्हिच इज रेफर्ड टू एज ऑपरेटर. दिस ऑपरेटर जीन माय डियरेस्ट चिल्ड्रन विल कंट्रोल ZYA व्हिच आर द स्ट्रक्चरल जीन्स. सो क्या कंट्रोल करता है? चलिए ABCD ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन. कम ऑन. गुड. Yes, good. Is the speed too much? So 1 regulator gene and 3 structural gene. 1 regulator, 1 operator and 3 structural genes. कौन है वो? ZYA. ZYA are the 3 structural genes. क्या बनाती हैं? They make enzymes. क्यों बनाती हैं? For digestion of lactose. तो इनको कब काम करना है? जब भाई लैक्टोज है तभी तो काम करेंगी. लैक्टोज है ही नहीं तो ये काम करके क्या करेंगी? इज दैट क्लियर? तब इनको क्या होना है? ऑफ. लैक्टोज है तो इनको क्या होना है? ऑन. इज दैट क्लियर? यस. चलिए आगे बढ़े. यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? गुड गुड. राइट. सो दिस इज अ रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और ABC वगैरह. ZYA होता है लैक ऑपरॉन में. ये क्या होती है? यहां पे कोई भी ऑपरॉन हो सकता है. ऑपरॉन में क्या होगा? रेगुलेटर. आपको पूछ सकते हैं कल कोई और ऑपरॉन, रिप्रेसिबल ऑपरॉन पूछ सकते हैं. यस, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सो आप जनरलाइज करिए कि एक रेगुलेटर जीन है, एक प्रमोटर जीन है और एक ऑपरेटर जीन है. इज दैट क्लियर? और उसके बाद क्या है? ZYA तो स्ट्रक्चरल जीन है लैक ऑपरॉन की. स्ट्रक्चरल जीन कोई भी हो सकती है. स्ट्रक्चरल जीन क्या बनाएगी? एंजाइम्स. तो इसलिए यहां स्ट्रक्चरल जीन्स को जनरलाइज करके क्या बना दिया है? प्रोटीन्स. एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स. यस, चलिए आगे बढ़ते हैं. The 3' 5' में आपको बता चुकी हूं. 3', 5', yes, anti-parallel nature. So the 3', 5' phosphodiester linkages inside a polynucleotide chain serve to join what? 3' to 5' जो चेन चल रही है डीएनए की, जो बैकबोन चल रही है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो चल रही है, क्या जुड़ता है उससे? बताइए, सोचिए, दिमाग लड़ाइए, बताइए, सोचिए. यस, गुड गुड गुड. बताइए. गुड. One nucleotide with another nucleotide. Yes, the phosphodiester bond is formed between the phosphate group which is connected to the 5'
prime carbon of the sugar residue of one nucleotide and 3 prime carbon of the sugar residue of the next nucleotide. तो आपको पता होना चाहिए बच्चों that sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate, और बीच में कौन है? A T T A G C C G, ये कौन है? बेसिस. तो ये क्या है? आपकी बैकबोन, और बीच में कौन लगे आपके? बेसिस. इज दैट क्लियर? राइट? इज दैट क्लियर? गुड. चलिए लेट्स मूव अहेड. What are the structures called that give you an appearance as beads on a string in the chromosomes when viewed under electron microscope? इसको हम रोजरी अपीयरेंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? जेनेटिक्स के पूरे क्वेश्चंस हैं ये, सब मिले हुए. इसको हम रोजरी. यस, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर. यस, इट्स अ वेरी फेमस दोहा बाय कबीर. वो कहते हैं कि माला फेरते फेरते तो पूरा साल महीने उम्र निकल गई, हाथ में जो हम माला फेरते हैं वो छोड़िए, अच्छी बातें बोलिए, अच्छा काम करिए. माला फेरत जुग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर. यस, इट्स अ वेरी वेरी फेमस कबीर का दोहा. तो मन का माला, रोजरी, ये देखिए. डीएनए भी ऐसा ही होता है. ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए. यस, सो व्हाट आर दीज? व्हाट इज दिस धागा? दिस इज द स्ट्रैंड. करेक्ट. और ये किसका बना है? हिस्टोन प्रोटीन्स. मैं आपको अच्छे से समझाती हूं. चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. All my old students, you know I've already explained this to you in the greatest possible detail. Yes, चलिए. So nucleosomes answer है. Let's look at it. Look at this beautiful diagram. Yes, nucleosomes अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे नजर आते हैं. Is that clear? अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो न्यूक्लियोसोम्स हमें कुछ ऐसे. अब ये जो है, ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला है. ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको इन डिटेल अभी समझाती हूं. ध्यान से सुनिए. देखिए बच्चों, ये आपका डीएनए का फाइबर है. चलिए लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं. चलिए, ये आपका डीएनए का फाइबर है. ठीक है. डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सो इट कुड बी अ लिटिल एसिडिक. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू न्यूट्रलाइज इट. वी हैव टू ऐड समथिंग व्हिच इज बेसिक. So what is something that is basic that we add to the DNA to neutralize it? That something which is basic which we add to the DNA, my dearest children, is nothing but correct. हिस्टोन प्रोटीन्स. क्या है ये? हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स कितने तरह के होते हैं? लेट्स डू इट. यस, सो देयर इज अ हिस्टोन प्रोटीन H1, H2. यस, H2 के आगे पार्ट्स होते हैं H2A, H2B. यस, इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? तो अब क्या करती हूं मैं बहुत एक इजी काम करती हूं. आपको पता चल गया बेसिक्स. अब मैं एक बहुत इजी काम करती हूं. मुझे एक गोला बनाना है. जैसे माला में मोती होती है, मुझे गोला बनाना है. तो मैंने ये 4 गोले बनाए. इन 4 गोलों को पहले मैं नाम दे देती हूं. 4 गोले हैं. इन 4 गोलों का मैं नाम दे देती हूं. एक को कहते हैं H2A, एक को कहते हैं H2B, एक को कहते हैं H3, एक को कहते हैं H4. H2A, H2B, H3 एंड H4. इज दैट क्लियर? इसके अब H2A, बिल्कुल H2A के पीछे मैं एक और H2A लगा देती हूं. सेम H2B के पीछे मैं एक और H2B लगा देती हूं. H3 के पीछे मैं H3 लगा देती हूं और H4 के पीछे मैं H4 लगा देती हूं. इज दैट क्लियर? तो क्या ये 8 का गोला बन गया? बताइए. इज इट 8? 4 + 4, 4 आगे और 4 पीछे. यस, H2A के पीछे H2A, H2B के पीछे H2B, H3 के पीछे H3, H4 के पीछे H4. तो ये 4 का गोला बन गया. दिस इज रेफर्ड टू एज अ ऑक्टामर. सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन्स का गोला. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन्स का गोला क्या कहलाता है? ऑक्टामर. क्या कहलाता है? गुड, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट. इट्स कॉल्ड ऑक्टामर. डन. ध्यान से सुनिए. हो सकता है ये गोला एक ऑक्टामर बना रही हूं मैं, इस पे ऑक्टा लिख देती हूं. राइट? आप ऑक्टा में लिख रही हूं, दिखा मैं एक गोला रही हूं, पर आपको पता है ये 8 गोलों का बना हुआ है, इसलिए इसको ऑक्टा कहते हैं. H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4. तो ये दूसरा ऑक्टा है. हो सकता है ऑक्टा ऑक्टा पे चढ़ जाए. यस, हो सकता है ऑक्टा ऑक्टा पे टकरा जाए. तो इसके बीच में, ताकि एक दूसरे पे क्लिक ना करे, मेरे को बीच में एक लंबा सिलेंड्रिकल डीएनए का पार्ट डालना पड़ता है, जिसको मैं कह देती हूं H1 और लिंकर डीएनए. क्या कह देती हूं? H1 और लिंकर. तो कितने हो गए मेरे पास डीएनए? H1,
H2 जिसके मैंने दो पार्ट बना दिए, H2A और H2B, फिर हो गया मेरे पास H3 और फिर हो गया मेरे पास H4। तो टोटल 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए। यस और नो? MCQ डायरेक्ट। अब आ जाता है मेरा प्यारा डीएनए। तो डीएनए आता है, घूमता है, आगे जाता है। इज दैट क्लियर? तो जब मेरे पास ऑक्टा है और उसके ऊपर डीएनए है, ऑक्टा और डीएनए मिलकर क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसोम। ऑक्टा इज ओनली 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। इज एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर? हिस्टोन प्रोटीन्स बिकॉज बेसिक है, 8 का गोला, ऑक्टामर, उसके ऊपर डीएनए गोल घूम गया, न्यूक्लियोसोम। अंडरस्टूड? दो न्यूक्लियोसोम आपस में टकराए ना, बीच में कौन आ गया? हिस्टोन प्रोटीन्स। हाउ कूल इज दैट? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? H1 हिस्टोन, लिंकर डीएनए। यस, अनइक्विवोकल, बिना किसी टेंशन के। इसको कोई कंटेस्ट नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडीज ऑफ। कौन है जिसने बेचारे ने अपनी बार बार श्रद्धांजलि दी है ताकि हम डीएनए पे स्टडी कर सकें? यस, bacterial virus. The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Alfred Hershey and Martha Chase. इन्होंने देखा कि ये वायरस है। देखिए, वायरस इंजेक्ट कर रहा है। वायरस क्या इंजेक्ट करता है? जेनेटिक मटेरियल। क्या है वो जेनेटिक मटेरियल? इट इज द डीएनए, राइट? वायरस आया, वायरस के पास दो चीजें होती है। एक वायरस के बाहर का कोट है। वायरस के बाहर का कोट किसका बना होता है? प्रोटीन। और एक वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए या आरएनए। तो जब वायरस एक बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोफेज। तो जब वायरस एक बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज को अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, तो क्या वो प्रोटीन दे रहा है अटैक करते समय, या क्या वो डीएनए दे रहा है? वो प्रोटीन नहीं दे रहा है, वो क्या दे रहा है? डीएनए। सो दिस केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हर्शी एंड चेज। हर्शी एंड चेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाहर का प्रोटीन कोट है। प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड छोटी छोटी यूनिट्स का बना हुआ है। देखिए, छोटी छोटी ज्योमेट्रिक यूनिट्स का बना है। यूनिट्स को क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। गुड। और इसके अंदर कौन होता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो क्या कैप्सिड और कैप्सोमियर जाता है नेक्स्ट जनरेशन में? नहीं। नेक्स्ट जनरेशन में कौन जाता है? डीएनए। इज दैट क्लियर? लाइक अ जेम्स बॉन्ड। कौन जाता है? डीएनए। चलिए, मूविंग अहेड ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। Yes, Human Genome Project was a very ambitious project developed by the United States government. अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा, इसने कौन सी नई, देखिए, जब बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर देखिए, जब 1978 में नैथन स्मिथ आर्बर ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढ निकाली थी। सो वी एंटर्ड एंड वी अशर्ड आफ्टर 1978 एन एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पर जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ढूंढ निकाला, हमने कर लिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो क्या बायोटेक्नोलॉजी आया, बायो मॉनिटरिंग आया, बायो इंफॉर्मेटिक्स आया, या बायो सिस्टमैटिक्स आया? बट ऑब्वियसली yes, with the help of DNA we had all the information on the gene. कौन सी जीन से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी जीन ऑन होती है, कौन सी जीन ऑफ होती है। So it was the era of bioinformatics. Bioinformatics is a newly developed field of biology that corresponds with collection. हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। yes, RNA DNA सैम्पलिंग करते हैं, right? डेटा कलेक्शन, स्टोरेज, एनालिसिस। यूएस के पास तो बहुत बड़ा डेटा सोर्स है, करेक्ट? आपने अगर वो ज़ॉम्बी वाली कोई मूवीज वगैरह देखे होंगे, आपको पता है कैसे लैब्स में इतना सारा डीएनए पड़ा रहता है, उसका हम प्रोटीन सीक्वेंसेस करते हैं, उसका कंप्यूटराइज सिस्टम्स में उसको डेटा स्टोर करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि अगर किसी को ये बीमारी है तो इसमें कौन सी जीन इस बीमारी को कॉज करती है। दैट्स कॉल्ड एज बायो इंफॉर्मेटिक्स। रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। अगर मैंने आरएनए पॉलीमरेज 3 किसी के न्यूक्लियोप्लाज्म से हटा दी तो क्या नहीं बनेगा? टीआरएनए नहीं बनेगा। हेट्रोजिनस आरएनए कौन होता है बताइए? हेट्रोजिनस आरएनए वो होता है जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों हैं। यस, जब इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजिनस आरएनए। एमआरएनए मैसेज लेके जाता है, आरआरएनए राइबोसोम्स बनाता है। क्या नहीं होगा? यस, ऑब्वियसली tRNA, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए बनाता है। tRNA पे यूट्यूब पे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पड़ा है, देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे। दैट्स माई वर्ड टू यू, अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। So, in eukaryotes, RNA polymerase type 1, 2 and 3 catalyze the synthesis of RNA using a template. Either DNA से RNA बनता है
Yes, type 1 is responsible. This is a direct MCQ question. Let me underline this for you. This is protein translation का diagram which I've done in detail. Protein translation मैं आपके साथ in detail कर चुकी हूँ. Yes, so type 1 जो है वो rRNA बनाता है direct MCQ. Type 2 mRNA बनाता है direct MCQ. And type 3 जो है वो tRNA synthesis करता है. Type 1 rRNA, type 2 mRNA and type 3 for yes tRNA synthesis. चलिए आगे बढ़े. Correct. Which one of the following is not a part of transcription unit in DNA? मुझे ट्रांसक्रिप्शन करना है, मुझे डीएनए से आरएनए बनाना है. इनमें से कौन सा ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट नहीं है? चलिए ऑन माई स्क्रीन. यस, ऑन माई स्क्रीन. करेक्ट. इंड्यूसर. करेक्ट. इंड्यूसर किसका पार्ट होगा? राइट. इंड्यूसर इंड्यूसिबल ऑपरॉन, लैक ऑपरॉन वगैरह में होगा. टर्म देखो बेटा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? बताइए व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज डीएनए टू आरएनए. बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए. मैंने करवाया है आपको, YouTube पे स्लाइड्स पढ़ी हैं. आप कहेंगे मैम बार बार एक ही राग अलाप रही है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो पार्ट है डीएनए का ये वाला पार्ट है मान लीजिए, और इससे मुझे आरएनए बनाना है. तो ये पार्ट जिससे मुझे आरएनए बनाना है वो यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है. इस पूरे पार्ट से मुझे आरएनए बनाना है. ये पार्ट कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन. क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल जीन. इसके पहले कौन लगा होता है पार्ट को शुरू करवाने के लिए? प्रमोटर. इसके बाद कौन लगा होता है आरएनए खत्म बंद करवाने के लिए? टर्मिनेटर. टर्मिनेटर को हम रो फैक्टर भी कहते हैं. प्रमोटर को हम सिग्मा फैक्टर भी कहते हैं. ये स्टार्ट करवाएगा. सिग्मा इज प्रमोटर, टर्मिनेटर इज रो, और बीच में जीन है जो डीएनए से आरएनए में कॉपी होगी. उसको मैंने क्या कह दिया? एब्सोल्युटली राइट, स्ट्रक्चरल जीन. राइट. रो, सिग्मा, प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन. इंड्यूसर कुछ नहीं होता है. देखिए प्रमोटर ये मेन जीन है जो कोड होगी. लुक एट दिस ब्यूटीफुल डायग्राम. ये प्रमोटर है. प्रमोटर अपस्ट्रीम होता है. इज दैट क्लियर? आगे के हिस्से में वहां से कॉपिंग शुरू होगी. ये पूरा आरएनए बनेगा और एंड में कौन होगा? टर्मिनेटर. ये जो आरएनए बन रहा है ये हेटेरोजीनस होता है. क्या होता है? हेटेरोजीनस. हेटेरोजीनस का मतलब क्या होता है बच्चों? लास्ट टाइम बता रही हूं, इसमें इंट्रॉन भी होंगे, एक्सॉन भी होंगे. इसलिए इसका क्या करेंगे अभी हम? स्प्लाइसिंग. क्या करेंगे? स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग के बाद हम किसको हटा देंगे? इंट्रॉन. क्या बच जाएगा? सिर्फ एक्सॉन. इज दैट क्लियर? एक चीज और आपको बतानी है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है. यहां क्या होगा? 5 प्राइम. हमेशा याद रखना, शुरू में 5 प्राइम. आरएनए हमेशा 5 to 3 पोलैरिटी के साथ होता है. 5 प्राइम को हम क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम. 3 प्राइम को हम क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों हो. हेट्रोजेनस आरएनए. जब आपका सिर्फ ये हो, जब आपका सिर्फ एक्सॉन हो लाइगेज से जुड़ा हुआ. होमोजेनस आरएनए. चलिए आगे बढ़े. चलिए, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन. राइबोसोमल आरएनए कहां बनता है? ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार एग्जाम में आया हुआ है. सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. बहुत इजी. लाइसोसोम में बनेगा. लाइसोसोम तो जाके बॉम्ब ब्लास्ट करेगा. यस, लाइसोसोम क्या करेगा? जब जो भी चीजें जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रही है वो लाइसोसोम जाके उड़ा देगा. राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाएगा, पर राइबोसोमल आरएनए कहां बनेगा? न्यूक्लियोलस. इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल. आपको पता है न्यूक्लियस का भी जो डेंस पार्ट होता है, यस, ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस का भी जो डेंस पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस. और यहीं पे हमारा आरआरएनए बनता है. इज दैट क्लियर? So nucleolus is the center of the nucleus. This is where the ribosomal RNA is synthesized. rRNA that form ribosomal subunits, right? Ribosomes फिर वो निकलते हैं बाहर निकल के क्या कहलाते हैं? Ribonucleoproteins. That means RNA and proteins. ये क्या है? This means rRNA plus proteins. rRNA proteins के साथ मिलकर क्या बनाएगा? Ribosomes. Yes? आई एम श्योर. देखो बच्चों, डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको करवा रही हूं. जैसे एग्जाम खत्म हो, मतलब हमारी फीड पे ऐसे धूम धड़ाका मच जाना चाहिए कि मैम हमारा नीट क्लियर हो रहा है.
करेक्ट। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में ये कोड है ATCTG, इससे सिंपल तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये तो आपको नींद में उठाया और बोला सॉल्व करिए धड़ाधड़। तो बताइए आरएनए में क्या होगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए आरएनए में आप टी को किससे यूटिलाइज, टी की जगह क्या डाल दोगे, एब्सोल्युटली। सो अगर ए के साथ टी ने बाइंड होना था तो आरएनए में ए के साथ टी नहीं लगेगा, ए के साथ क्या लगेगा, यू। यस, तो इट्स सच अ सिंपल क्वेश्चन। यस और नो कर लिया आप लोगों ने सॉल्व, बिल्कुल यस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, तो ये रहा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, इसके ये देखिए AUG मिथ्योनिन, यस आइसोल्यूसिन, सीरीन, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसलेशन। तो जब भी आरएनए बनेगा, जहां जहां टी लग रहा था, ए की जगह देखिए यहां टी लगना था, है ना। अगर डीएनए बना रहे होते, देखिए इस ए की जगह डीएनए में यहां टी लगा था, पर आरएनए में टी नहीं लगता। तो आरएनए में आपने टी को किससे रिप्लेस कर दिया, बस यू से। कभी भी ये क्वेश्चन आए आपको इतना करना है। इज दैट क्लियर? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स कितनी बार किया है, आज अब आप घर जाके जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे धड़ 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 निकलने चाहिए। इज दैट क्लियर? सो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, स्प्लाइसिंग, यस स्पाइसिंग नहीं स्प्लाइसिंग है ये, स्प्लाइसिंग डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस यस, चलिए। सो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। व्हिच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ सेल इफ देयर इज नॉनसेंस म्यूटेशन। देखिए लैक Z है, लैक Y है और लैक A है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तीनों क्या बनाते हैं, एंजाइम्स। क्या बनाते हैं, एंजाइम्स। तो अगर लैक Y खराब हो गया, कौन सी एंजाइम नहीं बनाएगी, मतलब लैक Y कौन सी एंजाइम बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ZYA है एंजाइम्स बनाते, किस लिए एंजाइम्स बनाते, मैंने आपको इतनी बार बोला है किस लिए एंजाइम्स बनाएंगे, ये एंजाइम्स बनाएंगे लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। राइट, डन। तो अगर कोई भी नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए तो लैक Y काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ZY 3 है। अब देखिए यहां पे एक चीज रट्टा मार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, डायरेक्ट MCQs। ZY 3 जीन है, राइट। ZY 3 जीन है, क्या क्या बनाते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बाय Z, लिख लीजिए लिख लीजिए, राइट। लैक्टोज परमिएज बाय Y, ट्रांस एसिटाइलाइज बाय A। सो लैक Z बनाएगा बच्चों बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक Y बनाएगा लैक्टोज परमिएज और लैक A बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों एंजाइम्स लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगी और ये तीनों एंजाइम्स लैक ओपेरॉन को आगे बढ़ाएंगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द फ्री नीट क्रैश कोर्स ब्रॉट टू यू बाय द एंटायर टीम Vedantu. I'm Dr. Vani. I'll take alvida for today. See you tomorrow, same time. Stay in touch. Keep working hard. Leave behind your lovely comments. I hope you had a fabulous time. Go back home, solve the MCQs, and let me know that you become a super cool kid in trying to solve all the MCQs. Bye bye, tada. I'll see you in tomorrow's class. Till then, take care and study very, very hard. Bye.